में नमी, हंसी लबों पर क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिनको छुपा रहे हो. ओके, बेयर विथ माई सिंगिंग. कैफ़ी आज़मी जी का लिखा हुआ ये गाना बॉयज़ और घर के मेल मेंबर्स पे ज़्यादा सूट होता है ना. क्योंकि कई बार वो लोग जो रियली महसूस करते हैं ना, वो कह नहीं पाते. Most of the times, boys and girls will have the same feelings for a specific situations. But why boys find it difficult to express their real feelings? They think smiling is better way or smiling is the best option rather than explaining yourself or explaining the situation, explaining the feelings. Really? Boys, you are not robot. We know you get hurt, you feel heartbroken. In fact, expressing your sorrow, your sadness, it all makes you human. I really don't know, and I'm surprised that who made that rule that boys don't cry. क्या लड़कियों की तरह रोता रहता है? Be a man. Take it like a man. ये क्या बात हुई? These phrases do not make boys and young men tough, but they just make them suppress their genuine feeling. And ultimately, it affects their self esteem and their inner self. When they are told not to cry, they feel suffocated, and that suffocation then turns into anger and sadness. They don't understand where this stems from, and then it builds and builds until it finds some way, unhealthy way. बाद में हम ही बोलेंगे कि ये तो बड़ा स्टबन है, ये इमोशनली अनअवेलेबल है, ये इमोशनली नम्ब है. तो क्या होगा? क्योंकि उन्होंने सारी फीलिंग्स छुपा के रखी है, दबा के रखी है, तो फिर क्या होगा? Some male members do not know how to connect emotionally with someone. अगर कोई इमोशनली उनसे जुड़ता है ना, तो थोड़ा वो घबरा जाते हैं. So boys, young men, any male member, never apologize for being sensitive and emotional, being fearful, being scared, being shy, being disappointed. ये सब acceptable emotions हैं. They are natural emotions. Crying is the natural emotion. Crying is the sign of strength, not weakness. It is the sign of honesty and sincerity. It is the sign that you have a big heart. Female members who is watching this video, please support your male members. Just sit with them, listen to them, just give your shoulders to cry. You are a parent, especially mother of boys. Just give your child a wide range of emotions. They need emotional support. Listen to them, what they are telling you. Just listen to him, how he feels. It gives him a sense of belonging, uh, being loved for who he is. फिर देखना, अगर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होंगी तो वो आसानी से सॉल्व कर सकेंगे विदाउट सेक्रीफाइसिंग देयर मस्क्यूलिनिटी. Here, I am giving you some art techniques. First, talk to your friend, talk to your parents, or talk to your siblings.
आप उनके साथ शेयर कीजिए, बताइए जो भी फीलिंग है आपकी, जो भी महसूस कर रहे हैं, जस्ट बता दीजिए। सेकंड, क्ले थेरेपी। जस्ट प्ले विथ क्ले। शॉप में से आपको मिल ही जाएंगी क्ले, तो आप उनसे कुछ बनाइए क्ले में से। आपको जो ठीक लगे, आपको जो मन कर रहा है, क्ले में से कुछ भी बनाइए। इफ़ यू आर एंशियस, disappointed, frustrated, sad, then clay therapy will be beneficial for you. यकीन मानिए बहुत मज़ा आएगा। आपका गुस्सा, आपका फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा। जस्ट क्ले लीजिए और कुछ भी बनाइए, आपकी इमेजिनेशन से कुछ भी बनाइए। सारा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन वो क्ले में निकाल दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने खुद ने ट्राई किया है। सेकंड वन इज टेयर पेपर्स। इफ यू आर एंग्री, enraged, then tear papers. बहुत मज़ा आएगा। गुस्से में होते हो ना, वो टाइम निकल जाएगा, और वो टाइम का निकलना बहुत ज़रूरी है। आपका गुस्सा निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो निकल गया तो फिर बाद में आप अच्छा डिसीज़न ले सकेंगे। एंड फाइनली माय फेवरेट थेरेपी, पेंट विथ म्यूज़िक। बहुत मज़ा आता है उसमें। मैं जब भी नेगेटिव फीलिंग्स में होती हूँ ना, तो पेंटिंग करती हूँ म्यूज़िक के साथ। कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग लगा लो, कोई भी ढिंचैक सॉन्ग लगा लो, आपको जो मन करता है वो सॉन्ग लगा लीजिए एंड पेंट विथ म्यूज़िक। यू नो फ्रेंड्स, आर्ट में कोई रूल नहीं होते हैं। आपको जो मन चाहे वो कर सकते हैं। अगर म्यूज़िक के साथ आप पेंटिंग करना चाहते हैं, ओके। कुछ लिखना चाहते हैं, ओके। डांस करना चाहते हैं, ओके। जो भी चीज़ आपको कंफर्टेबल लगती है या फिर कंफर्टेबल बनाती है, वो सब कर सकते हैं। सो बॉयज़, अब से आप कुछ भी नहीं छुपाइएगा। अगर रोना आ रहा है, रोइए, नो प्रॉब्लम। अगर कुछ बताना चाहते हो, बताइए, नो प्रॉब्लम। खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए, अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रहिए। सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये सारी टेक्निक्स आपको बहुत काम लगेगी। इट विल बी हेल्पफुल टू यू, एंड प्लीज़ give me your feedback. I am really waiting for your responses. So that's it for today. See you in the next video. Bye bye.